A very healthy good morning, my dear students. Today we are going to discuss the same chapter. Chapter name is How Do Organisms Reproduce, but part number second. So today we will discuss about the types of reproduction or subtypes of reproductions. Mainly we will discuss about the main two types of reproduction today. The two main type of reproductions are asexual reproduction and sexual type of reproduction. You will receive this type of topic from your NCERT book. Name of the topic is mode of reproduction used by single organism. Mode of reproduction used by single celled or single organism. So we will discuss about this lecture today. What is single cellular type of reproduction, what is multicellular type of reproduction, and what is the difference between the both. So let's start with the types of reproduction. We will discuss about the firstly type of the reproduction. Here main two types of reproduction. Number one asexual reproduction and number two sexual reproduction. Okay? So you can judge by the name what is asexual reproduction. Asexual type of reproduction is that reproduction in which offsprings generate from the one parent. Offspring जो पैदा ਹੁੰਦਾ है ਉਹ ਇੱਕ parent ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ parent ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮੇਲ ਨਾ ਫੀਮੇਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਉਹਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਇਓ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ asexual ਦੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ asexual ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ one ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਮੀਬਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ ਅਮੀਬਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਸੈਲੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਡੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ asexual type of reproduction करवाते हैं ठीक है on the other hand we have also the second type that is called the sexual reproduction in sexual reproduction two parents are involved one is male and second one is a female for the reproduction और इन्हां दोनों दे विच डिफरेंस मैं तुहानूं दस दांगी डिटेल दे विच हुण भी ਆਪਾਂ डिस्कस कर लैंदे आ जो asexual reproduction हुंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ यू कैन नोट मेरा सब तो पहला असीं ये देखो कि ये असीं जो भी करन जा रहे हैगे आ जां असीं डेली करते हैगे आ ठीक है टॉपिक्स करते हैगे आ यू हैव टू कीप योर नोटबुक इन योर हैंड्स ताकि जो आप एक्स्ट्रा भी लिखते हैं फटाफट तुसीं उहनूं लिख लो हुण पॉज करके तुसीं वीडियो नूं फटाफट अपनी नोटबुक अगर कैरी नहीं कीती तां करो एज वेल एज योर NCERT एंड रेफरेंस बुक फॉलो आफ्टर लेक्चर ठीक है सो दैट यू कैन क्लीयर ईच एंड एवरी टॉपिक मैनूं यह हुंदा है कि जो भी आप करते हैं एटलीस्ट तुहानूं उन्नी चीज़ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मैं तुहानूं कहनी नहीं है कि नहीं करना एटलीस्ट वो सारी की सारी चीज़ तुहानूं आंदी होवे ठीक है सो asexual reproduction दे विच सब तो पहली गल असीं की लिखी है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पेरेंट किन्ने ਹੁੰਦੇ ਆ one parent involved only ठीक है नंबर टू पेरेंट ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਗੈਮੀਟ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਰੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮ ਸੈਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰਦਾ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਓਵਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਓਵਮ ਤੇ ਸਪਰਮ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੈਮੀਟ अगर कोई पूछे कि मेल का गैमीट की है मेल का गैमीट की हैगा स्पर्म सेल फीमेल का गैमीट की है ओवम जां एग की है ओवम जां एग ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਸੈਕਸੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ नो गैमीट फॉर्मेशन कोई गैमीट ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਮੀਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਸੈਕਸੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੈਮੀਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਕਸੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ थर्ड तुसीं इहदे विच लिख सकते हैगे आ कि जिहड़ा ऑफस्प्रिंग है बड़ी जल्दी टाइम दे विच पैदा हो जाता है ऑफस्प्रिंग नूं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता पैदा होने लई सैक्सुअल रिप्रोडक्शन दे विच उहनूं टाइम लगता है फोर्थ तुसीं पॉइंट की लिख सकते हैं कि जेनेटिकली सेम हुंदा है जिहड़ा ऑफस्प्रिंग है जिद्दां दा पेरेंट आ उदां दा ही ऑफस्प्रिंग हो जाता है ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਸੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣੇ ਆ ਟੂ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਹਾਫ ਕਰੈਕਟਰ ਮੇਲ ਦੇ ਜਾਣਗੇ ਹਾਫ ਕਰੈਕਟਰ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ
लेकिन साडे कोल इन असैक्सुअल रिप्रोडक्शन वन पेरेंट आ ते वन पेरेंट ने अपने वर्गे ही बिल्कुल ऑफस्प्रिंग्स नूं जनरेट करवाना है। आई होप कि तुहानूं ये चीज़ समझ आ गई होगी कि असैक्सुअल रिप्रोडक्शन की है। फर्दर डिटेल्स असीं सैक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर लांगे, लेकिन अज जो असीं करना है, अज असीं ये करना कि असैक्सुअल रिप्रोडक्शन दी फर्दर कितनियां टाइप्स होंदियां हैगियां हैं। ठीक है, गल इत्थे खत्म नहीं हुंदी कि असीं असैक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ ली है जां सैक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ ली है, दैट्स इट। ये जस्ट स्टार्टिंग है तुहाडी। असीं ये देखना है कि असैक्सुअल रिप्रोडक्शन दे विच भी कितनियां टाइप्स हैगियां। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट टाइप। हियर मैं की लिखा होया टाइप्स ऑफ असैक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ असैक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये विच सब तो पहले सारे कोल किहड़ी आउंदी है, बाइनरी फिजन। तुसीं अगर बुक नूं फॉलो करोगे तो तुहाडी बुक ने फिजन वर्ड लिखा होएगा स्टार्टिंग च, फिजन वर्ड। ठीक है, तो मैं तुहानूं ये हल्का जिहा दसदा फिजन का मतलब की हुंदा। फिजन का मतलब हुंदा है टुटना, ठीक है, ब्रेक होना किसी चीज़ का। सो फिजन मीनस ये साडी कोल असैक्सुअल रिप्रोडक्शन दे नाल एवें ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैगे जिहड़े कि टुट के बन रहे हैं, फिजन होके बन रहे हैगे आ। ठीक है, सो ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स दे विच हो सकदी है इस टाइप की रिप्रोडक्शन। और फिजन भी साडे कोल टू टाइप की हुंदी है। ठीक है, इत्थे आपां लिख दिंदे आ फिजन भी साडे कोल फर्दर कितने टाइप की हुंदी है, टू टाइप की। एक हुंदी है बाइनरी, बाइनरी फिजन। एक साडे कोल की है मल्टीपल फिजन। हाँ जी, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। सो ये विच की होएगा, बाइनरी फिजन दे विच साडे कोल जो ऑर्गेनिज्म हैगा है वो टू पार्ट्स दे विच डिवाइड होएगा, यानी कि वन पेरेंट तो टू ऑफस्प्रिंग बन जाएंगे। बाइनरी बाई मतलब की हुंदा, बाई मतलब टू, ट्राई मतलब थ्री। तो बाई मीनस के टू कि वन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कितने बन गए, टू ऑफस्प्रिंग बन गए किहदे विच, बाइनरी फिजन दे दौरान। मल्टीपल फिजन्स की होएगा कि साडे कोल एक पेरेंट तो मल्टीपल मतलब मैनी ऑफस्प्रिंग्स बन जाएंगे। ठीक है, और इन्हां दोनां च डिफरेंस की है ये असीं हुण देखना है। वैसे मैं तुहानूं दसदा डिफरेंस की है, बाइनरी फिजन च टू ऑफस्प्रिंग बन गए और मल्टीपल फिजन च मैनी ऑर्गेनिजम्स बन गए, ऑफस्प्रिंग्स बन गए। ठीक है, लेकिन इन्हां च वैसे की है डिफरेंस असीं देखते हैं। देखो इत्थे की लिखा बाइनरी फिजन, इट इन्वॉल्व्स द लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब हुंदा टुटना जां ब्रेक होना ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स। इहदे विच की होएगा कि एक ऑर्गेनिज्म आ टू इक्वल हाफ दे विच स्प्लिट हो जाएगा, टुट जाएगा, विच डिवेलप इनटू टू सैपरेट इंडिविजुअल, और वो फर्दर दो सैपरेट इंडिविजुअल दे विच बन जाएगा, यानी कि ऑफस्प्रिंग बन जाएंगे। इत्थे असीं लिखिया होया जां तां ट्रांसवर्स जाएगा जां की जाएगा लॉन्गिट्यूडनल। की लिखा है, ट्रांसवर्स जां लॉन्गिट्यूडनल। वो चीज़ मैं तुहानूं इत्थे क्लीयर कर दिंदी हां की हुंदी आ। देखो साडे कोल अगर असीं गल करिए सब तो पहलां तां अमीबा दी मान लो असीं गल कर रहे हैं, अमीबा तां अमीबा दी शेप आ वाली है। देखो इदां करके रफली आपां बना दित्ती हैगी आ, और अमीबा जिहड़ा हैगा है इदां करके डिवाइड हो जाता है हौली हौली टू ऑफस्प्रिंग्स दे विच। आ देखो जी ये कितने बन गया, टू ऑफस्प्रिंग बन गए हैगे आ, यानी कि की है टू डॉटर सैल भी इन्हां नूं कह सकते हैं असीं जां ऑफस्प्रिंग कह सकते हैगे आ। तां इस टाइप नूं असीं बोलांगे इररेगुलर डिवीजन। केड़ी है इररेगुलर, थोड़ी एनसीईआरटी बुक्स से भी मेंशन हैगी है इररेगुलर टाइप हैगी आ। और इस तो इलावा असीं इहदे विच छोड़ के देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। केड़ी है लॉन्गिट्यूडनल, पहला असीं देख लिए हुंदी ये भी बाइनरी फिजन ही है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इहदे विच की देखना असीं कि मान लो पैरामीशियम दी एग्जांपल आ, सारे कोल कोई पैरामीशियम है इदां करके। ठीक है, पैरामीशियम दे सीरियल लगे हुंदे आ, और लॉन्गिट्यूडनल यानी कि इदां करके उहदी कटिंग होनी है, इदां ब्रेक होना है। लॉन्गिट्यूडनल दे नेम तो याद रख लो, लंबे लोट ब्रेक होना उन्हें। ठीक है, तुसीं कदे नहीं भुल्लोगे। फिर ट्रांसवर्स दे विच किद्दां होना है, ट्रांसवर्स दे विच मान लो कि आह सारे कोल की है पैरामीशियम, तुहाडी बुक ते बड़ा अच्छा दिखाया हुआ इत्थे देख सकदे, उत्थे इदां दी कटिंग होनी है इस टाइप। आ ट्रांसवर्स है, ये थोड़ी कोल की है लॉन्गिट्यूडनल कटिंग हैगी आ। बट दोनों दे विच की होना, पेरेंट टू इक्वल हाफ दे विच डिवाइड होना। टू इक्वल हाफ लिखना बहुत जरूरी है। आ देखो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, दिस इज आल्सो फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। ये इरेगुलर है, इहदे विच भी की आ गया टू इक्वल हाफ्स दे विच डिवीजन हो गई अमीबा दी। आई होप कि तुहानूं बाइनरी डिवीजन दा क्लियर हो गया होएगा। लेट डिस्कस वंस अगेन। It involves in the longitudinal or transverse splitting. इहदे विच longitudinal ਜਾਂ transverse splitting हो रही है ऑर्गेनिज्म दी पेरेंट दी into two
equal halves which develop into two separate individuals. Two equal half ਦੇ ਵਿੱਚ separate ਜਿਹੜੇ individuals ਜਾਣੀ ਕਿ daughter cell ਜਾਂ ਅਸੀਂ offspring ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, daughter cells ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਜ਼ਨ ਔਰ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਮੀਬਾ ਐਂਡ ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ। ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਮੀਬਾ ਐਂਡ ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ। So let's start with the second division, that is called the multiple fission. That is called the multiple fission. Multiple fission ਦੇ name ਤੋਂ ਇੰਡੀਕੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 2 ਨਹੀਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਰ ਸੈਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੱਚੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਆ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ, ਡੇਲੀ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਮਲਟੀਪਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਸੋ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, under unfavorable conditions organism does not stop reproducing। पहली गल तो ये समझ लीजिए, ਜਦੋਂ देखो रिप्रोडक्शन कदों होनी है, ਜਦੋਂ कंडीशंस की मिलणगे ऑर्गेनिजम्स ਨੂੰ फेवरेबल। ठीक है, फेवरेबल मतलब कि जिस कंडीशन चो रिप्रोडक्शन कराना चाहता है ਉਹਨੂੰ बोलते हैं फेवरेबल। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ऑर्गेनिजम ਨੂੰ नहीं चाहिए बट ਉਹਨੂੰ मिल रही हैगियां ਉਹਨੂੰ ਕੀ बोलांगे? अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, जिदा मान लो कि सोका आ गया, सोका पै गया सारे किते, सानू कंडीशन नहीं चाहिए सी, असीं कहांगे कि हुण अनफेवरेबल कंडीशंस आ गईयां। ठीक है, सो मल्टीपल फिजन की हुंदा हैगा है जदों अनफेवरेबल कंडीशंस आ जांदियां ऑर्गेनिज्म डज नॉट स्टॉप रिप्रोड्यूसिंग। उस टाइम भी कहंदे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग नूं आपदी नूं स्टॉप नहीं करदा बट वो किसी होर तरीके नाल देखदे हैं की करदा, बट इट डिवाइड्स रैपिडली इनसाइड ए सिस्ट। हुण मान लो कि सैल दे विच है ऐसा करके। ठीक है, रिप्रोडक्शन होनी है और तुसी सब तो पहली गल ये भी याद रखनी है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही सेकंड टाइप आ। हाँ जी, बट डिवाइड रैपिडली इनसाइड ए सिस्ट एंड फॉर्म्स मैनी इंडिविजुअल इनसाइड द सिस्ट। तो मान लो सारे कोल की है एक सिस्ट है, सिस्ट एक छोटा जिहा सी की कह सकते हैं पार्ट कह दो, सिस्ट टुकड़ा कह दो। ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਬਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ सिस्ट। ठीक है, पत्थर छोटा कहते हैं सिस्ट नूं कह दिंदे आ, पत्थरी कह दिंदे आपां, बट एक पार्ट मान के चलो सी कि मल्टीपल फिजन दे विच की हुंदा अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस भी ऑर्गेनिज्म अपने आप नूं स्टॉप नहीं करवाउंदा रिप्रोडक्शन लई, लेकिन इनसाइड ही अपनी जो सिस्ट है ओहदे विच मल्टीपल जिहड़े हैगे आ ऑर्गेनिजम्स नूं डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, असीं इत्थे की लिख सकदे हैगे आ, इत्थे असीं लिख सकदे हैगे आ मल्टीपल इंडिविजुअल लिख दो तो ये मल्टीपल रिप्रोडक्शन हो जाएगी। आफ्टर दैट एंड फॉर्म्स मैनी इंडिविजुअल इत्थे बन गए, लेकिन किहदे विच बने आ हले? इनसाइड द सिस्ट, हले बाहर नहीं आए। इन्हां नूं कह नहीं सकते कि बर्थ हो गया इन्हां दा, अंदर ही इदां मल्टीप्लाई होया इनसाइड द सिस्ट। ये गल ध्यान नाल देखो तुसीं। When favorable conditions comes, मैं conditions उते पूरा नहीं लिखा, ध्यान नाल देख लियो। जदों favorable condition आ गई comes organism release, organism इहदे चों की हुण स्टार्ट हो जाणगे रिलीज, इत्थों दी निकलना स्टार्ट हो जाणगे ऐदां करके। ठीक है, जिन्ने भी organism अंदर आ वो बाहर आ जाणगे, रिलीज हो जाणगे मल्टीपल इंडिविजुअल्स दी फॉर्म दे विच। ठीक है, और एग्जांपल मैं तुहाडी डिस्कस कर दिंदी है, इहदे नाल इसनूं असीं की बोलदे हैगे मल्टीपल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक बार फिर दसदा अंडर अनफेवरेबल कंडीशन कोई भी ऑर्गेनिज्म जिहड़ा हुंदा है वो अपनी रिप्रोडक्शन नूं स्टॉप नहीं करता हैगा, वो अपने इनसाइड ही सिस्ट दे विच ना जो अपने कोल ऑर्गेनिज्म हुंदा है एक उहनूं काफ़ी दे विच डिवाइड कर लैंदा हैगा है। और जदों फेवरेबल कंडीशन आ जांदी है, हुण मान लो इत्थे फेवरेबल कंडीशन आ गई सी तां उहने रिलीज़ करवाती, सारे जिहड़े इंडिविजुअल इत्थे बने सी रिलीज़ करवाते तो ये सारे नवे इंडिविजुअल बन जाएंगे। जिन्ने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिन्ने भी असीं कीते 9 सारे कोल इंडिविजुअल आ जिहड़े नवे बन गए, तो मल्टीपल काफ़ी बन गए नंबर दे विच, इहनूं असीं की बोलांगे मल्टीपल फिजन। और एग्जाम्पल इहदे विच असीं की लिखिया प्लाज्मोडियम। की लिखिया है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम साडे कोल हुंदा मॉस्कीटो दे विच, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੇ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਮਲਟੀਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ,
सो अज असी ये करना सी, नैक्सट एक होर भी कर लेने हैं, पर मैं तुहानूं बेसिकली डेली करनी हुंदी है कि आपां बेटा करते हैं तो इट मीनस के यू ऑल्सो हैव टू रिवाइज ऑल दिस। अगर तुसीं रिविजन नहीं करोगे तो कुछ भी पॉसीबल नहीं है, टीचर करवांदा है काम ठीक है, लेकिन सारा कुछ डिपेंड किस ते करता है कि तुसीं खुद की कर रहे हो अपने लिए, ठीक है। क्योंकि मैं इत्थे करवा रही हाँ, तुहाडे लिए करवा रही हैगी हाँ, लेकिन तुसीं अपने आप च कितना ऑनेस्ट हो वो तुहानूं खुद नूं पता है, ठीक है ना। सो तुसीं मतलब कि डोलना नहीं है कि लॉकडाउन हो गया साडे तो कुछ नहीं होना हैगा, काम नहीं होना हैगा। ये बिल्कुल ही क्लासरूम का इन्वायरमेंट मैं तुहानूं एक तरह का दे रही हैगी हाँ, ठीक है, ताकि तुहानूं कोई लैकिंग फील ना होवे कि असीं स्कूल नहीं जा रहे हैगे, ठीक है। सो नैक्सट असीं एक होर टाइप कर लैंदे हैगे जिहनूं असीं की बोलदे हां फ्रैगमेंटेशन। की बोलना इहनूं असीं फ्रैगमेंटेशन। हाँ जी, फ्रैगमेंटेशन के नेम तो इंडिकेट हो रहा है, इट मीनस के फ्रैगमेंट, इसका मतलब की है फ्रैगमेंट। ये भी सारे कोल की टाइप आ असैक्सुअल रिप्रोडक्शन की फ्रैगमेंटेशन। और हाँ जी फ्रैगमेंट, मान लो फ्रैगमेंट का मतलब होता पार्ट्स, ठीक है। कोई चीज़ में मैं कहना कि फ्रैगमेंट्स के विच ब्रेक कर दो, फ्रैगमेंट्स का मतलब की है इनू डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों पार्ट्स के विच डिवाइड कर दो, ठीक है। इनू असीं किद्दां लिख सकते हैं हाँ, इनू असीं कह सकते हैं कि पेरेंट बॉडी डिवाइड हो गई है सैवरल फ्रैगमेंट्स के विच, ठीक है। एंड जिहड़े फ्रैगमेंट्स है जिन्ने बने वो नवा ऑर्गेनिज्म आ जिहड़ा उहनूं बनाउणगे, ठीक है। की कहना असीं इहदे विच इन दिस टाइप of reproduction parent body इत्थे लिख देंगे आपां divides into several fragments and each fragment develops into new organism। तो एक बॉडी है मान लो, ठीक है, ये भी कंपलैक्स ऑर्गेनिज्म च नहीं होंगी, सिंपल होएगी। जिन्ने भी असैक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले सिंपल ऑर्गेनिज्म च ही है, ठीक है। तो इन्हां विच की होएगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हैगा एक सिंपल, ठीक है, ਉਹਦੀ बॉडी है जी फ्रैगमेंट्स के विच डिवाइड हो सकती है, और जिन्ने फ्रैगमेंट्स के विच डिवाइड हुई आ उन्ने ऑर्गेनिजम्स अपने तो वो पैदा कर सकती हैगी आ, ठीक है। और ये विच साडे कोल एग्जाम्पल जिहड़ी असीं लिख सकते हैगे आ, वो एक तो एग्जाम्पल लिख लो इत्थे तुसीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये स्पाइरो गायरा एंड लनेरिया। स्पाइरो गायरा एंड लनेरिया मैं डायग्राम बना के ड्रॉ करके तुहानूं दिखाउणी आ हुणे। सब तो पहले मैं दसदा कि स्पाइरो गायरा की एलगी की टाइप आ, एलगी। और लनेरिया देखो ये भी अपने कोल सिंपल ऑर्गेनिज्म आ। लनेरिया की टी साइलेंट होंदी है, लनेरिया असीं प्रनाउन करना है, ठीक है। सो इहदे विच की हुंदा है आपां डिस्कस कर लैंदे आ। मान लो थारे कोल आह ऑर्गेनिज्म है कोई, तुहाडी बुक ते डायग्राम बनी हुई है, देख सकते हो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इदां करके ये डिवाइड हो गया 3 पार्ट्स विच, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वन, ठीक है। 3 पार्ट्स विच डिवाइड हो गया तो की होएगा, इहदे 3 फ्रैगमेंट्स बन गए, जाने के 3 फ्रैगमेंट्स बन गए। तो फर्स्ट असीं इहदी गल करते हैं, मान लो आ फ्रैगमेंट जिहड़ा इन्ना बनया, तो इन्ने फ्रैगमेंट तो इहदी जिहड़ी बाकी बॉडी हैगी आ वो बन जानी हैगी आ, ठीक है। आ देखो बाकी बॉडी में डॉटर फॉर्म च दिखाई है थानू, ताकि थानू क्लीयर हो जाए, जस्ट इन्ना असीं करना है। ये असीं गल कीती आ थर्ड वन दी। हुण सैकेंड वन की गल कर लो असीं, सैकेंड वन दे विच जस्ट आ पोर्शन से सेंटर वाला साडे कोल आ सी, तो नीचे वाला भी बन जाएगा पोर्शन, ते ऊपर वाला पोर्शन भी बन जाएगा, ठीक है। आ देखो, ठीक है। हुण असीं आ फर्स्ट वाले पोर्शन की गल करते हैं, तो इहदे विच की बनिया होया, ऑर्गेनिज्म बनिया होया, नीचे वाला सारा पोर्शन जिहड़ा हैगा वो बन जाएगा। ध्यान नाल देख लो, मैं फिर तुहानूं समझा दिंदी हैगी आ, ठीक है, कि साडे कोल एक ऑर्गेनिज्म है लनेरिया है, वो डिवाइड हो गया, मतलब फ्रैगमेंट्स बन गए, वो 3 फ्रैगमेंट बन गए, 3 हिस्से 1 2 एंड 3, और तिना तो ही नवा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। साडे नाल तां इदां नहीं हुंदा, क्योंकि असीं सैक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप विच आ जांदे आ। असीं अगर अपनी आम कट दांगे
ठीक है। तो आप तो एक न्यू ह्यूमन बीइंग ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਸਟ ਆ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਫਸਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਪਾर्ट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਰਕ ਕਰਕੇ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਖੁਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਿਊ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜਸਟ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦਿਖਾਦਾ ਡਾਰਕ ਕਰਕੇ, ਆ ਸੈਕਿੰਡ वन ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਾਨ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਪਾर्ट ਤੋਂ ਹੀ। थर्ड वन उपरला पार्ट आ देखो कटिंग, आ कटिंग देखो आ की हुई है, आ पार्ट से डार्क करके बनाया और नीचे वाला पार्ट खुद बन गया। यानी कि फ्रैगमेंटेशन के 3 पार्ट हुए सी और तिना पार्ट्स तो 3 इंडिविजुअल जेडे हैगे आ वो न्यू बन गए हैगे। आई होप कि तुहानू क्लीयर हो गया होगा, ठीक है। बाकी तुसी जो मतलब रिवीजन हैगी आ मैं तुहानू फिर कहनी हैगी आ ਉਹਨੂੰ टाइम टू टाइम करना है, सिर्फ बायो की नहीं गल करनी हैगी, सारे सबजैक्ट्स नूं तुसीं फॉलो करना है, ठीक है। इस करके मैनूं तां ये है कि तुहाडे टॉपिक दे विच कोई भी अगर डाउट हैगा वो नाल दी नाल क्लीयर हुंदा जावे, ठीक है। नैक्सट आपां देखदे हां। हाँ जी, एक मैं तुहानूं होर कहना सी, जज्बा रखो हर पल जितण दा, जज्बा रखो हर पल जितण दा, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, वक्त जरूर बदलता है, किस्मत ते असीं इन्ना विश्वास नहीं कर सकते। गुड लक कईयां दा पहलां ही बहुत अच्छा हुंदा है, कईयां नूं अपना लक बनाउणा पैंदा है, लेकिन टाइम जरूर चेंज हुंदा है और टाइम उहदा हुंदा है जो हार्ड वर्किंग परसन होवे। गल हमेशा याद रखनी है, किस्मत किसी कोल भी हो सकती हैगी आ, जरूरी नहीं कि परसन हार्ड वर्किंग सी, लेकिन जो हार्ड वर्किंग है उसका टाइम एक दिन चंगा जरूर आएगा। ये गल तुसीं याद रखना, क्योंकि मैंने काफ़ी कमेंट आ रही सी, मैम जी तुसीं कोई एक सानू मोटिवेशनल लैक्चर दे दो। वैसे तो मैं एक थानू लीव भी किया सीगा है ना, उहदे विच अपना यूट्यूब पर पाया होया सीगा, लेकिन फिर भी मैंने एक बच्चे ने कहा सी मैम दस दो, घरे पढ़िया नहीं जाता है, कोई गल नहीं, मैं एक होर मोटिवेटेड थानू लैक्चर दूँगी, करूँगी मैं डिलीवर बहुत जल्दी। लेकिन तुसीं ये गल याद रखनी है कि अपने प्रीशियस टाइम नूं इदां ही नहीं गवाउणा हैगा, ठीक है। बहुत प्रीशियस है तुहाडे कोल टाइम, और स्कूल तो हाले कह नहीं सकते कदों ओपन होणगे, हो भी सकते नहीं भी हो सकते हैगे, लेकिन तुसीं बिल्कुल उदां ही रहना है जिद्दां तुसीं पहलां एक वे दे नाल स्कूल जांदे सी, मॉर्निंग उठदे सी, ठीक है, सारा काम करदे सीगे, और उदां ही तुसीं अपने आप नूं अलर्ट रखना है। सो अज मैं सोच रही है कि इन्ना ही बहुत हैगा। नैक्सट टॉपिक जिहड़ा हैगा रीजनरेशन होएगा, कल डिस्कस करांगे, और ये सारी डिटेल दे विच तुसीं कर लेना कि डाउट है मेरे तो पूछ लेना है। एंड स्टे safe, stay at home, and have a very nice day. Thank you so much, dear.